Good morning, friends. Today we are going to start chapter number 3, linear pair of two variables. Weightage 8 marks. So, it's a very important chapter, very lengthy chapter as well. It will take at least of 2 weeks for the completion, and there are some difficult sum as well. So if you can't see video all that well, you will not able to understand. And that's why be careful. You bound to see video I will send pertaining to chapter 3. So let's see chapter 3, weightage. In short form, right, 8 marks. 2 marks objective, 2 marks question 1 and 4 mark question 1. Altogether, how many? You can see 8 marks. Pair of linear equation in two variable. I think you have seen something regarding that in standard 9. Generally denote the number of two variable, that is x and y. Now, what is the standard and general form of this? So you have to be very careful. Ax plus by plus c equal to 0 is standard form, right, or general form of linear equation. Standard form or general form. And at the same time, a and b are both of them not 0, not both of them 0 at the same time. Not only that, one more condition that will come as an MCQ: a square plus b square is not equal to 0. So we often denote the condition of a and b, they are not both 0, by a square plus b square. This is a prime condition, can be asked for a 1 mark or a solo question. Now, what do you understand by ax plus by plus c equal to 0? Here, x is a variable, y is another variable. So, right, a is a coefficient of x, b is a coefficient of y, and c is a constant term. When a and b simultaneously, या तो at a time, when both of them 0, तो a 0 तो x भी 0 हो जाएगा, b 0 मीन्स y भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? c. 0 plus c equal to 0, तो c भी क्या हो गया? 0. That means equation will not sustain. That's how, very important thing over here, what is the general form or standard form of this linear pair is ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c, they are real numbers, and a and b are not both 0, is known as linear equation in two variable x and y. Not only that, but you have to understand a square plus b square is not 0, it is your prime condition of this lesson. Now, this is true for any linear equation, that is, each solution is having coordinate x comma y of a linear equation in two variable where ax plus by plus c equal to 0, ये इसका solution हो गया. It corresponds to a point on the line corresponding to equation and vice versa. Now here, these two linear equations are in same two variable x and y. What we will suppose for that? General form for a pair of linear equation two variable is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Let's take equation 1. a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Let's take equation 2. What do you understand by this? a1, b1, c1, a2, b2 and c2. ये सब क्या है? Right? All of them
आर रियल नंबर्स, ये दोनों सभी के सभी 6 के 6 कैसे है, रियल नंबर्स. एंड नॉट ओनली दैट, व्हाट इज द प्राइम कंडीशन, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन लेते हैं 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. मतलब अगर ये आपके पास दो इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 1, ये आपका एक इक्वेशन हुआ 2. इसको हम लोग 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. वन मेथड इज ग्राफिकल मेथड, another method is of substitution method, one more method is elimination method, and last one cross multiplication method. Thus how, right, they are different way to represent but answer will remain same. अगर ये आपको दो इक्वेशन है, आपने ग्राफ प्लॉट करना 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, राइट, तो वो हाउ डू यू डू दैट, तो आप लोग क्या करेंगे, राइट, किसी y को हेड बना देंगे. से फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम लोग देखें, 3y को यहाँ ही रखते हैं लेफ्ट में, उस तरफ ले जाओ तो 7 माइनस 2x. और फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 3-4 वैल्यू लेंगे अपनी मन चाही x की, तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, इजंट इट. अब मान लो अगर हम लोग x के बदले 2 लेते हैं, x के बदले 2, तो 7 माइनस 2 इंटू 2 4, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3. अगर मान लो x के बदले हम लोग यहाँ पे x के बदले क्या लेते हैं 3, तो 2 3 6 हुआ, 7 माइनस 6, राइट. बट हम लोगों ने क्या गलती कर दी है यहाँ पे, देखो पर्पसली मैंने ऐसा लिया, हमने ये 3 से तो डिवाइड किया ही नहीं. मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x अपॉन 3. अब हम लोग सिलेक्टेड वैल्यू लेंगे तो आपको फ्रैक्शन में भी मिलेगा. तो ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, समझ में आया. जैसे कि अगर आपने यहाँ पे राइट 1 लिया तो 7 माइनस 2, राइट 5/3, और ये 3 भी नीचे आया तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/9. तो डिफ़िकल्ट टू प्लॉट द ग्राफ. अगर मान लो यहाँ पे 2 लिया, 7 माइनस 2 2 4, तो 3/3 1 हुआ, बट यहाँ से 3 आया, मतलब कि अगर हम लोग 2 लेते हो तो क्या आएगा 1/3. तो ऐसे सॉल्यूशन आ सकते हैं. सो बी केयरफुल कि ऐसे कोई भी आंसर आ सकता है, बट आ तो सकता ही है. नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ज्योमेट्रिकल या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ऑलवेज पॉइंटिंग, राइट, पॉइंट आउट इट. क्या है ये, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब कि जिसका पावर 1 हो, वो इसको लीनियर बोलते हैं. ये देखो, राइट, x y, इसका पावर कौन सा है, राइट 1, x का पावर 1, y का पावर डिग्री. यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे a1x b1y c1, राइट, x का पावर 1, y का पावर 1. तो ये लीनियर होता है, और लीनियर का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन. नाउ सजेस्ट what a pair of linear equation in 2 variable will look alike. So geometrically, right, there will be 2 straight line, right, both to be considered together. There are 3 options for that. कौन से 3 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग. 3 ऑप्शन में पहला ये, if 2 line intersect each other, right, intersect each other in 1 point, तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक, राइट. अगर आप लोग देखेंगे दूसरा चांस कौन सा है, 2 लाइन्स आर पैरेलल. आप लोग देखेंगे 2 लाइन कैसी है, पैरेलल. ये क्या, ये एक दूसरे को टच करती है, तो कि नहीं, ये पैरेलल है, मतलब कि इसका नो सॉल्यूशन. या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एम्प्टी सॉल्यूशन. कौन सा, एम्प्टी. और एक अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं वॉइड, राइट, वॉइड मतलब कि एम्प्टी. और तीसरा चांस कौन सा है, यहाँ पे देखो एक ही लाइन है, एक ही लाइन, राइट. तो इसमें बहुत सारे, ये इस तरफ भी जा सकती है, यही L है, यही M है, दोनों को एक ही समझे तो कितने सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, राइट. देयर आर मैनी सॉल्यूशन,
मैनी सॉल्यूशन ऐसा बोल सकते हैं, राइट। इसको ऐसा बोलते हैं कोइंसाइड। तो देर आर 3 चांस ऑफ लाइन टू बी इंटरसेक्ट। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन 1 पॉइंट तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन 2 लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे आर पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन, एम्प्टी सॉल्यूशन। और तीसरा अगर हम लोग देखें ये वाला, राइट, ओनली 1 लाइन, मतलब कि सभी के सभी सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मैच होते हैं तभी तो एक लाइन बनती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट, इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन और लाइन में हम लोग बोलेंगे कोइंसाइड। अब राइट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है, राइट, व्हाट इज द एग्जाम्पल। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, राइट। अखिला गोज फॉर ए फेयर विथ ₹20। कौन? अखिला गोज फॉर ए फेयर and wants to have rides on giant wheel and pay hoopla. Represent this situation algebraically as well as geometrically. बराबर। अब देखो सेक्शन 3.1 में आपका राइट पहला क्वेश्चन कौन सा है, राइट। तो अगर हम लोग देखें कि अखिला गोज फॉर ए फेयर विथ ₹20 वॉन्ट्स टू हैव ए राइड्स, राइट, तो जायंट व्हील का वो हुपला का सवारी करते हैं। तो इसके 2 इक्वेशन है। पहले तो हम लोग 3.1 सेक्शन में देखेंगे कि कौन से इक्वेशन बनते हैं। तो देखो से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3.1 सेक्शन में इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, राइट, तो 3.1 सेक्शन में उसका क्वेश्चन कौन सा है, पहले हुपला वाला, राइट। तो अगर आप लोग देखें, राइट, ऐसा क्वेश्चन है, लुक एट दिस। Denote the number of rides that Akhila had, right, by X and number of times he played hoopla by Y. So now situation can be represented by 2 equation. Y equal to क्या हो गया, हाफ X। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बना। और दूसरा इक्वेशन क्या है, राइट, उसने दे दिया है, राइट, उसने दे दिया है मतलब कि उसने ऐसा बोला हुआ है, वो सेक्शन में ऐसा बताया है, राइट, कि अगर आप ये हुपला खेलते हो तो उसके अखिला राइट के पास राइड कितनी है 3x और नंबर ऑफ टाइम्स उसने कितनी बार पे किया तो 4, इसलिए उसका चार्ज कितना हुआ 20। तो हमारे पास एक इक्वेशन आया 3x + 4y = 20। ये हम लोग ऐसे इक्वेशन बनाया है, सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करना हम लोग आगे देखेंगे, बराबर। तो नाउ हमारे पास ऐसे 2 इक्वेशन बन गए, y = हाफ x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड मतलब कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो y = हाफ x मतलब कि x = क्या हो गया 2y, मतलब कि x - 2y = क्या हो गया 0, बराबर। और ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 3x + 4y = 20। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो वैल्यू लेते हैं हम लोग इसकी, ग्राफिकली x की वैल्यू ऊपर देखा वैसे मन चाहे ले सकते हैं। x अगर हम लोग 0 ले, x = 2y में x 0 ले तो y भी क्या हो जाएगा, राइट, 0/2 0। अगर हम लोग x = 2y में x 2 ले ले, x की वैल्यू 2 ली तो 2/2, इसकी आंसर क्या आएगी 1, बराबर। और ये जो दूसरा वाला है इसका आप खास देखें 3x + 4y = 20 है, इसको कैसे मेंडिंग करेंगे 4y = 20 - 3x, मतलब कि y = 20 - 3x/4। और अब हम लोग अगर ग्राफ बनाए तो x की वैल्यू अपने मन चाहे लेते हैं, राइट। मान लो x 0 ले लिया, x 0 लिया तो 20 - 0/4, 20/4 कितना आया 5। यहाँ पे 3 है, बराबर, तो 4 लेते हैं, 4 3 = 12, बराबर। 20 - 12 8/4, तो हमने क्या लिया 4 लिया, 20 - 12, राइट, 20 - 12 मतलब कितना हुआ 8/4, आंसर कितना आया 4/2। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लॉट करेंगे।
आपको समझ में आया? और जब हम लोग ये प्लॉट करेंगे, राइट, तो प्लॉटिंग के हिसाब से अगर आपने इसको प्लॉट किया, देखते हैं इसको, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ये तो आपको आता ही होगा, राइट। तो देखो एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। वैसे हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, देखो नेगेटिव नहीं ली है तो हम लोग नेगेटिव इस तरफ लेंगे नहीं। अब ट्राई टू प्लॉट 0 0 0 0 2 1, ये पहला लाइन ऐसे गया। दूसरे का ग्राफ, और इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई ये x इक्वल टू 2y की लाइन है। दूसरे का ग्राफ अगर आप लोग देखो तो x0, जब भी x0 और y5 है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ऐसे प्लॉट करना आता होगा, x0 y5। और 4n2 मतलब कि ये कैसे जा रहा है, लाइक दैट। आप लोग देखो ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, राइट, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो उसका आंसर, बट मैंने तो बिना स्केल पेंसिल से लिया है, तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो उसका आंसर कहलाता है। समझ में आया? दैट्स हाउ वी विल गेट द सॉल्यूशन। आपको समझ में आया, राइट? तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे अगर ग्राफिकली देखे तो आया नहीं, बट क्योंकि हमने देखो इस तरफ बड़े बड़े लिए, इस तरफ छोटे छोटे लिए, तो ग्राफिकल तो स्केल पेंसिल सबसे किया जाता है, राइट, मतलब कि स्केल पेंसिल से करो तो आपको मिल जाता है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आया। दूसरा ग्राफ अगर आप लोग यहाँ पे देखें, राइट, तो दूसरा ग्राफ उन लोगों ने प्लॉट किया तो एक ही लाइन आई, राइट, एक ही लाइन। और तीसरे में अगर आप लोग देखेंगे तो राइट 2 लाइन पैरेलल आई। मैंने आपको लगेगा कि सर फटाफट दिखा रहे हैं, पर ये पहला ग्राफ, राइट, अगर आप लोग देखो तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपने देखा आगे, राइट, तो फर्स्ट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक पॉइंट में। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो मैनी सॉल्यूशन, 0 3 भी है, 3 1 भी है, 4.50 भी है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, राइट, मतलब मैनी सॉल्यूशन, एक ही लाइन है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 2 पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करे तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, राइट, एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, 3.1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. पहले तो ये क्वेश्चन को algebraically देखते हैं. Now try to understand. Sorry. आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है, राइट, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो हम लोग आफ्ताब के लिए क्या ले लें? आफ्ताब्स एज BX और उसकी डॉटर की एज क्या लेते हैं? डॉटर्स एज BY। 2 वेरिएबल हो गए आपके, आफ्ताब की एज X, डॉटर की एज Y। 7 years ago, जैसे कि अभी मान लो आप 15 ईयर के हैं, तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 8। तो कैसे आई? क्योंकि 15 - 7, तो यहाँ पे 7 years ago आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? X। तो 7 year ago एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? X में से 7 माइनस करेंगे, जैसे आपने 15 में से 7 माइनस किया। उसी वक्त लड़की वहाँ की वहाँ थोड़ी रहेगी,
7 ईयर एगो एज ऑफ डॉटर क्या होगी? एज ऑफ डॉटर y-7, बराबर। तो अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम लोग ऐसा बोला, आफ्ताब ने उसकी बेटी को क्या बोला? 7 ईयर्स एगो, उसकी एज कितनी हुई 7 ईयर्स एगो? x-7, और डॉटर की y-7। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। 7 टाइम, आफ्ताब की एज कितनी है 7 साल पहले? x-7, और डॉटर की एज कितनी है? y-7, और उसने क्या बोला कि उसकी एज 7 टाइम है, 7 टाइम। तो आगे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, नॉट ऐड। और अब इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करके, x-7, 7y-49, 7y को उस तरफ ले जाओ तो x-7y, -7 को उस तरफ ले जाओ तो -49 + 7 तो कितना हुआ? -42। ये इक्वेशन 1 बना। अब आफ्ताब का दूसरा सेंटेंस क्या है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आपकी एज अभी 15 है और आपको ऐसा बोले 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि इसके बाद, हेंस। तो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? x+3, और आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ किसकी? डॉटर की। तो डॉटर की एज कितनी होगी? y+3। बट तब उसने क्या बताया आफ्ताब ने अपनी बेटी को? उसने ऐसा बताया, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 टाइम्स ऐसा बोला, मतलब कि x+3, 3 × y+3, 3 टाइम्स है ना, 7 टाइम था तो 7 लगा दिया, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है तो 3, x+3, एक्सपांड करो तो 3y + 9, x-3y। आपकी 2 इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। इसको हमने रिप्रेजेंट किया, राइट, एल्जीब्रिकली। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है तो कैसा होगा? लेट अस सी ग्राफिकली। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ से पीछे ले लेते हैं हम लोग, पीछे के पेज पे। तो x-7y = -42, इसको 7y को हेड बना देते हैं तो -7y, -42 -x, माइनस माइनस सभी के माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 7y 42 + x। अब क्या करेंगे? 7 को उस तरफ नीचे ले जाएंगे, तो ये एक इक्वेशन ग्राफिकली के लिए हुआ। दूसरा अगर हम लोग यहाँ से ले तो दूसरा कौन सा था? x-3y = 6, -3y को ऐसे ही रखते हैं तो 6 - x, तो -3y को प्लस बना दे तो ये साइन चेंज, 6 नेगेटिव हो गया और x पॉजिटिव हो गया। क्यों? सभी की साइन चेंज कर दी, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस। अब ये 3 को कहाँ ले जाएंगे? x - 6/3। अब दोनों के अप्रोप्रिएट वैल्यू बनाते हैं, 2 2 3 3 वैल्यू काफ़ी है, x y 1 2 3, इस तरफ भी x y 1 2 3। अब देखो, अगर x 0 लेते हैं तो 42/7 6 आ गया, बराबर। अगर हम लोग x 7 लेते हैं तो 42 + 7 49, 49/7 कितना हुआ? राइट, 7। अगर यहाँ पे हम लोग, राइट, यहाँ x के बदले ऐसा ले के जो उसके मल्टीपल में आए, राइट, तो अगर 7 ले ले, -7 ले ले तो 42 - 7 35, 35/7 कितना हुआ? 5। ये आपका, राइट, ये आया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 6 लेते हैं x के बदले तो 0, बराबर। 12 लेते हैं तो 12 - 6 6/3 2, 18 लेते हैं तो 18 - 6, राइट, 12 12/3 4। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें हमको आंसर नहीं लाना है,
इज दैट क्लियर? वैसा दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकते हैं हम लोग, राइट, बट वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।